اور سنائے بھائی جان؟ الحمدللہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ اللہ میاں کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف صلح کے لیے جھکتا ہے تو ہمیں بھی حکم ہے کہ پھر ہم بھی صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں. اتنی سی بات ہے. گڈ جی گڈ گڈ. جی ٹوانا صاحب اور سن لیا. نذیر صاحب اتنا بھی جھکنا اچھا نہیں کہ انسان اپنی نظروں میں گر جائے. میں یہ جواب دینا نہیں چاہتا نذیر صاحب. اگر میرے سامنے میرے عقیدے پہ اگر کوئی بندہ بکواس کرے نا، جو آپ لوگوں سے بکواس کی جاتی ہے، صرف جو نام کی آئی ڈی بنا کر جو نیچے آتا ہے، جو لکھتا بھی کچھ نہیں، صرف اتنا بھی ہو نا، میں دوبارہ اس جگہ پہ نہ تھوکوں نہ کبھی جاؤں. مجھے جب گارنٹی پتہ چل گیا نا کہ یہاں پر میرے مذہب کے ریلیٹڈ بلاسفیمی ہوتی ہے، تو میرے جیسا بندہ یہ دنیاوی آدمی، میں نہیں گیا آج تک، نہ کبھی جاتا ہوں. لیکن اس کے لیے میں ٹوانا صاحب آپ جی کا ایک بار میں آپ لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے، میں یاد دلا دیتے ہیں. یہ عثمان ایوبی شیوب یہ وہ فلان ٹنگ یہ وہ، کبھی نہیں گیا. اپنی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے ایک دو آڈیوز مجھے آئیں، میں نے طاہر کی براڈ پہ مدعا اٹھایا، اپنی طرف سے میں نے اپنا کام کیا، کوئی مانے نہ مانے. وہ مائنڈ روسٹر میر صاحب نے ایک بات کہی تھی، کسی بھی ضمن میں کہی ہو، مجھے ٹھیک نہیں لگی. میں نے مائنڈ روسٹر صاحب کے پاس ان کی براڈ پر کبھی گیا ہی نہیں پلٹ کے، نہ جانا، نہ آمنا کرنا، نہ سامنا کرنا، بات ہی ختم. بس یہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ اپنا اینالائز خود کر لیں. کوئی کتنا بھی صلح کر لے یار، آپ لوگ مذاق تو نہیں ہو. مجھے اب میں بولنا نہیں چاہتا، کیا باتیں کیا کرتے ہو یار آپ لوگ. آپ خود اگر عزت نہیں کر رہے ہو نا مرزا صاحب کی، دوسرا تو کر رہے کہ وہ تو اس پہ تو حجت ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے مجھے ایک ایگزامپل دی، میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ یار آپ کو کیا جواب دوں میں. ابھی میں نے بہت اچھے سے اپنے پہ رکھ کے جواب دے دیا، حالانکہ آئی ایم ناٹ اے گڈ ایگزامپل، پر میں نے ایک جواب دیا. ہوپ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن دیکھیں اب آپ کے سمجھنے کا یا آپ کے فیصلے کا ایک اپنا الگ زاویہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ علم لے کے اٹھے ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں یا خدا تعالیٰ نے ان کو پیغام پہنچانے کے لیے کھڑا کیا ہے، تو انہیں پھر لازماً ان خدا تعالیٰ کے اور گزشتہ انبیاء کی سنت اور خدا تعالیٰ احکامات کی پیروی پر ان پر پھر لازم آ جاتی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایک دن اس سے ایسی آتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں اتمام حجت، پھر اس وقت پھر وہ رابطے کٹ جاتے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی ماشاء اللہ ٹوانا صاحب ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖੱਪ ਲਓ, ਹੋਰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਖੱਪ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ میں ਕਰਕੇ ਨਾ بابا ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ جانی اللہ ਮਾਫ کی قسم ਕਰਨਗੇ, میرا ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ. ہاں میرا میٹر ਉੱਥੇ ਹੀ شارٹ ਉਂਗਲ ہو رہا ਪਾਣਗੇ ہے. ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਹੋਏਗਾ. ہاں میرا میٹر شارٹ ہو رہا ہے نا بننا تو گلنا تو سن یار نہ انہاں کو ڈیفینس ہو رہا ہے اس گل دا، تعویل بھی دے رہے ہیں الٹ سلٹ پلٹ، ٹھیک تے بولنا ایک منٹ ضروری آنا ہے. آئی ایم سو سوری بردر یار، آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ نذیر صاحب، آپ کو گالی سننے کا اور اپنے نبی پہ جو آپ کا سو کال نبی ہے اس کو گالی بڑھوانے کا جو ہے اس کا آپ کو چسکا لگا ہوا ہے. نہیں ٹوانا بھائی، سوری میں تو کم از کم اپنے آپ کو لیتا ہوں کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے نا. یہ جو براڈ کی دنیا ہے نا یہ کیا تبدیلی کرے گی؟ تو یہ کیا براڈ کی کرو گے؟ دنیا سنبھالنا مشکل ہے تو کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ چھوڑ دو. تو چھوڑنا پڑے گا. تیری ٹھیک آواز ہے. کٹ رہی ہے طاہر، تیری آواز نہیں آ رہی، نیٹ خراب ہے تیرا. بس یہاں پہ چھوڑ دو. اوکے جی ٹوارا صاحب السلام علیکم. ایک منٹ یار، دیکھنا پڑتا ہے یار کون ہے بھائی. او یار میں باجوہ. آپ کو باجوہ. سنتا ہوں، میں اس طرح کا نہیں ہوں، ڈرو نہ مجھ سے. ابے ڈرنا کیا ہے یار. ٹوارا صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا 2-4 منٹ پہلے، میں 100% سے بھی زیادہ آپ سے اگری کرتا ہوں. جماعت احمدیہ کے لوگوں میں بالکل غیرت نہیں ہے، یہ بغیرت لوگ ہیں. یہ شارپ شوٹر ورگے بندوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جس نے سب سے زیادہ مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں. ان کی غیرت ہے ہی نہیں ہے، یہ خود گالیاں پڑھواتے ہیں. کل آپ نے دیکھا وہ جو نصر اللہ نے براڈ لگائی تھی، سب سے یہ جماعت میں اس ٹک ٹاک پہ سب سے زیادہ گالیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی ہیں. جو 2-3 بندوں نے ان کو اس نے بٹھایا ہوا تھا. یہ ہے ان احمدیوں کی غیرت. ان کو آپ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بس چسکا لگا ہوا ہے، یہ چسکا لیتے ہیں. یار لیکن ہم نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایک تو یہ بھی پرابلم ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو جب تھوڑا سا بھی غلط بولو نا تو آپ لوگ بالکل اس کچھوے کی طرح نا وہ پیچھے کے شیل میں ایسے چلے جاتے ہو، ایک دم چھپ جاتے ہو. یار غلطی ہر انسان میں یہ، اور یہ میں آپ لوگوں کا یہ نہیں کہہ رہا کہ ایز اے کوئی جماعت، میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو جتنے بھی لوگ ہو، اللہ کے بندو، آج دن کے ٹائم افضل وڑائچ صاحب عامر حق کو بٹھا کر ایک ایک احمدی اس کے آگے پھینک رہے تھے. تم لوگ انسان ہو یا بکرے؟ میں بول رہا ہوں تمہیں مٹھائی کی طرح استعمال کر رہا تھا وہ، کہ ڈاکٹر ڈیرنگ اچھا پہلے مجھے استعمال کیا، گالی گلوچ میرے کو دی، ڈاکٹر ڈیرنگ سے اس کو خوش کیا، پھر بولا کہ ڈاکٹر ڈیرنگ چل تو آ ہی گیا ہے تو چل تجھے میٹھا کھلاتا ہوں. اٹھایا ایک احمدی، پھر اٹھایا ایک اور احمدی، اور لاسٹ میں جب تک اپنی براڈ کھول رہا تھا تو آپ میں سے ماشاءاللہ پیدائشی احمدی بھی جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں وہاں بیٹھے. یار میں ایک بات کرتا ہوں، فار ایگزامپل سننا. یہ ابھی کس نے بات کی تھی؟ باجوہ نے. باجوہ بھائی میں اور آپ بات کریں، میں آپ کو نعوذ باللہ، آپ کو کیا، چلو ایکس وائی زیڈ، میں کسی کو بولتا ہوں کہ یار آپ جو کتے کی اولاد ہو، ایگزامپل، ٹھیک ہے، آپ وہاں بیٹھ کر کیا ڈیفینڈ کر رہے ہو یار؟ کہ نہیں آپ غلط بیانی کی بات کر رہے ہیں، میں کتے کی اولاد نہیں ہوں. اصل میں یہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی. انڈیویجول لیول پر یہ بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ کس بات کا دفاع کر رہے ہو ادھر؟ یہ چیز اگر آپ لوگ صحیح سے کھڑے ہوتے نا اس بات پہ تو یہ چیز اتنی آگے تک نہ پہنچتی. ابھی بھی بیٹھے وہاں لوگ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے شارپ شوٹر کی ایگزامپل دی ہے، بالکل دی ہے. آگے بھی ہوگا، آگے بھی ہوگا. جی ٹوانا صاحب، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ادھر مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پچھلے 4 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی بھائی جی. ہم نے بڑے ٹیکے لگائے ہیں، غیرت کے ٹیکے بھی لگائے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ لولو وائسی کے ٹیکے لگوانے پڑیں گے انہوں کو، کیونکہ انہوں کی غیرت نہیں جاگ رہی. یہ بار بار ادھر حسینی کی براڈ پہ بھی ایگزامپل سب سے بڑا یہ ہے کہ ادھر یار کھلا گستاخی ہوتی ہیں، کھلی جب بھی آپ کھولو حسینی کی براڈ ادھر بکواس چل رہی ہوتی ہے، ایک نمبر کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے. پھر بھائی نعوذ جان باللہ. وہی لوگ بھاگ کے زبانیں نکال کے ادھر پہنچتے اوپر کہ ہماری بات سن لیں. ہم نے عامر نذیر کو تبلیغ کرنی ہے، ہم نے ڈاکٹر ڈیرنگ کو کرنی ہے تبلیغ،
हमने उन्हीं लोगों को ही तबलीग करनी है जो लोग आप लोगों को कोई इंसान भी नहीं समझते यार। कोई हाँ। नॉर्मल लोगों के अंदर बैठोगे तो नॉर्मल बातें करोगे, ऐसे लोगों के साथ बैठे रहोगे तो यही गांधी निकलेगा। तो फिर मेरे जैसे लोग जो है ना डंडा पकड़ के फिर बुण च जो देंगे, फिर तुसी कहो ओ हो हाँ, ये वो एमडी भी ने नहीं ये करना। कर दिया वो कर दिया। भाई जी मैं किसी ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਖਾਓਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਟਿਵਾਣਾ, ये मेंटल सिकनेस है इन लोगों में। यार मैं किसी आपको को बोल रहा हूँ specific नहीं बुरा कह नहीं रहा, मानना, सारों में। गाली पड़वाने का चस्का है यार, अल्लाह की कसम यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब ये कौन है? यार सिद्धू मैं सियालकोटी। सिद्धू सियालकोटी बोल रहा हूँ। मौलवी साहब आप रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे? वो इतना जोर से हमले कर रहे हैं और जमा के सीगे बयान कर रहे हैं उसमें अहमदियों को और ये वो। चलो टवाना साहब बात ये है, अब मेरी 1 मिनट गुजारिश सुन रहा भाई, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 700 से जायद मरतबा नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई है, ठीक है। कुछ पढ़ते हैं, कुछ जुमा पढ़ते हैं, कुछ ईद पढ़ते हैं, कुछ एक आध नमाज पढ़ते हैं। बहुत चंद थोड़े लोग होते हैं जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। अब खुदा के हुक्म से ज़्यादा तो कोई भी हुक्म अजीज़ नहीं ना किसी को, लेकिन इसके बावजूद वो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। इसी तरह ये जितनी भी बातें हैं ये हमें भी मालूम है, हम कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, वो वाक़तन ऐसी मजालस में नहीं जाते, इन मजालस का हिस्सा नहीं बनते और ना वो अंगेख्त होते हैं। लेकिन बाज़ लोग अपनी सोच रखते हैं, वो कहते हैं जी हम अपने आप पे काबू रख सकते हैं, ये हो सकता है ये फ्रीडम है हर एक को, ठीक है। आपकी तरफ भी ऐसे ही है, आपके भी लोग आपकी तरफ भी ऐसे है, आपके लोग भी वहाँ जाते हैं जहाँ माज़अल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर सवाल हो रहे होते हैं और इल्हाद खुदा नहीं है, इस तरह की बातें। तो ये हम कोई डंडा तो नहीं है किसी के पास ना कि हम डंडा लेके सबके पीछे चढ़ देंगे, भाई ताहिर अमजद क्यों बैठा है उधर या फलां राना राशिद क्यों बैठा है। भाई हम बार बार तलकीन करते हैं, यही कुरान करीम का हुक्म है। अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा कि तुम्हारे ज़िम्मा सिर्फ नसीहत का पहुँचाना है, तुम कोई इन पे दरोगा नहीं। तो अगर आप समझते हैं कि हमारी जमात कोई दरोगों की जमात है या हम जो यहाँ टिकटॉक पे बैठे हैं हम कोई दरोगे हैं, तो फिर भाई हम कर लेते हैं, कोई टांगे तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं ऐसा यार नहीं है, खुदा के रसूल को ये कहा गया तो बाकियों के लिए भी यही है। तो खुदारा ये मेरा जब आप भाई कोई बुराई या नुक्स बयान करते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे सारा मुआशरा ही बुरा है। जो अच्छे लोग हैं ना उनकी भी कदर किया करें। बेशुमार ऐसे अहमदी हैं, मैं सैकड़ों की तादाद में टिकटॉक पे दिखा देता हूँ कि जो इन जगहों पे नहीं जाते, लेकिन चंद एक जाते हैं, आप उनको लेके बाकी भी जो बेचारे मुनासिब हैं उनको भी रगड़ रहे हैं। अच्छा मैं जवाब देता हूँ भाई। जज़ाकल्लाह। जी आता हूँ यार। सबसे पहली बात ये, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे। मैं फ़ोन अभी निकाला मैंने, मैं जब ये बात कर रहे थे ना तो मुझे इरिटेशन हो रही थी इनकी बात सुन के ना कि यार क्या मतलब क्या बेकार बात कर रहे हो यार आप, सॉरी टू से। तो मैंने बोला कि चल मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट को कि इसको ज़रा बुलाता हूँ। नीचे माशाल्लाह उसको देखा तो वो था स्टूडेंट जो है, मुझे नीचे नज़र आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम मौलवी भाई। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 90% ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਆ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਚਸਕੋਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗਿਰਟ ਵਿਲਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸ਼ੁਦਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੋਂ।
ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ मीडिया भाई वो हर बंदा नवा होता मेरे मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है ही कोई नहीं, आपको तो पता ही नहीं है तबलीग मैंने करनी है। तो फिर इसलिए जो ज़ाती हवाले से हम किसी को रोक नहीं सकते। ये जो शार्प शूटर है, जब मैं टिकटॉक के ऊपर आया 3 साल पहले, तो पहले हफ्ते में मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था और अभी तक ब्लॉक है। जो अब्दुल्ला काफ़ी अरसा हो गया, 1.5-2 साल हो गए हैं, वो भी ब्लॉक है। तो अगर किसी जगह के ऊपर ये मिल जाए, कोई बात हो जाए, तो वो एक अलग बात है। वगरना जो ये जो दोनों लोग हैं ये बिल्कुल ब्लॉक हैं। ज़ाती हैसियत में हम बात कर सकते हैं अपनी, लेकिन अगर हम सब के बारे में एक अमूमी बात करें तो वो भी ऐसी नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो नहीं इनके साथ इंगेज होती, लेकिन कुछ लोग हैं, वो क्या उनकी बैकग्राउंड है, वो उनका क्या माइंडसेट है, वो समझ से बाहर है। वो तो आप देख लें कि वो ताहिर भाई के खिलाफ भी कल बराड़ लगी हुई थी। नहीं, वो आपस की ब्रॉडिंग यार वो मैटर नहीं करती यार, वो बताऊं वो मैटर नहीं करती यार। ये इन लोगों में लड़ाई हो गई, उसने इसको बुरा भला कह रही, ये नहीं यार, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो इंसान है ना, आप दोनों तो एक नॉर्मल इंसान हो, क्या है, लड़ लिए, इट्स ओके, लड़ते रहो, इट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है, अब जैसे 2 भाइयों ने ना बात की, सिद्धू भाई और नज़ीर भाई ने हिमायत में, मुझे अब क्या परसेप्शन जा रहा है कि यार मैं बोल रहा हूँ कि खुदा की कसम, अब मैं ऐसे अल्फाज बोलना नहीं चाहता, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, मैं नहीं की। सिद्धू साहब ने जो बात की है ना, वो उन्होंने उसकी यार इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है मौलवी साहब। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सबको ना कहें, आप जो जमा वाला सीगा है वो इस्तेमाल ना करें, पूरी जमात कैसे को ना सबको कहें। कैसे ना कहूँ, मैं बोलता हूँ सबको, मैं कैसे क्यों कह रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं उसकी भी दलील दूंगा। आप एक आदमी के मुंह से मैं ये बात सुनूं अगर, ठीक है, फिर भी आप उसको साथ बिठा रहे हो, फिर वो ये कल जाके वो फिर करता है, फिर गाली खाता है, फिर आप उसको, चलो आपको आगे लॉजिक दे देगा यार ये बात हुई, ये बात हुई, ओके, परसों जाके फिर बैठता है, फिर गाली खाता है, फिर आपको सामने रखते हो, फिर वो आपको दलाइल देता है कि नहीं यार ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। आप बोलते हो चलो यार मत करो, चौथे दिन फिर जाता है, फिर गाली खाता है, 5वें दिन फिर खाता है, 6ठे दिन फिर खाता है, 7वें दिन फिर खाता है, खाता ही जा रहा है रोज। फिर भी आपके साथ अगर वो नजर आए तो आपके अंदर भी एक्सेप्टेंस लेवल आ चुका है, जो आप रियलाइज नहीं कर रहे। नहीं, एक तो ना यार, एक टवाना भाई यार लगातार हो रहा है ना, मैं तो देख रहा मेरी हूँ बॉस ने इतना जालिम, मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी कहा है कि ये जो फोरम है ना टिकटॉक वाला, बड़ा जालिम फोरम है, और इसको अगर हम महदूद करके सामने रखें तो वो भी गलत है। इसमें हर बड़े अजीबोगरीब किस्म की सोच वाले लोग हैं, और आप हैरान रह जाएंगे कि बढ़िया अनमोल किस्म की जस्टिफिकेशन आएंगी, और बाज़ औक़ात आप रह भी नहीं सकते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि सदियों से, यानी कि अच्छे भले तजर्बे वाले, वो भी नहीं बाज आते ऐसी हरकतें करने से। तो इसकी कमज़ोरियां हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि इस फोरम की कमज़ोरियां हैं यार, ये फोरम की कमजोरी है। हाँ, जाहिर है उसमें ऐसे लोग आप, इसीलिए ये जो सिद्धू सियालकोटी साहब ने बात की है ना, कि आप सबको नहीं कह सकते। आप मेजॉरिटी देखें ना, जो चले जमात वाली वेबसाइट भी, तो उनमें अगर 2 या 4 या 10 बंदे जाते हैं, खुदा दा नाम मौलवी साहब, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ, ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹੀ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, 2 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਫੌਜਦਾਰ ਬਣੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਰੋਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਰੋਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸਰ।
ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹਾਲੇ- ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਰ ਹਾਂਜੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਹਰ ਬਰੋਡ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਠੋ, ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, 100 ਫੋਲੋਅਰ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹਾਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਸਰ? ਫਿਰ ਬੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया तो उन्हें फिर उसको यार मालूम ही मौलवी उसी तरह साहब करना। आप एक बात बताइए, देखें अब जी, बुरा जी। ना मानिएगा, नहीं नहीं मैं आप बुरा नहीं ट्विटर मानता। पे तुसी जाएं, मैं आप सच जितना आप जितना झंझोड़ रहे हैं ना, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ। आप जी, जी। मुझे पता है, मैं बताऊं आपको, मैं झंझोड़ क्यों रहा हूँ, वजह भी दे देता हूँ। मैं कोई बड़ा पीर फकीर नहीं ना, मैं सच्ची बात है कि मुझे आपके अकीदे से कोई लगाव या कुछ है। मुझे आप लोगों से ना वो आता है, आप लोगों से नहीं, मतलब जब भी कोई होता है ना, मुझे उससे वो होता है कि जब मैं देखता हूँ ना हिपोक्रेसी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब नसरुल्लाह साहब के आगे और ताहिर के आगे मैं गुस्से में तब आया जब ये लोग अपना इख्तिलाफ रखने के बावजूद मेरे आगे नाटक कर रहे थे कि, और इन्होंने ये बोल दिया कि भाई हमारे बीच तो कुछ नहीं है, हम लोग एक अकीदे के हैं, एक भाई हैं। तब यार मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि मैं साला गधा हूँ। मैं अगर गलत बंदा अपने अकीदे में से देखता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ, मैं अकीदे का ख्याल नहीं रखता, मैं नॉर्मल बात करता हूँ। आप अकीदे को देते हो तो मैंने फिर वो बात बोली यार, इस हिसाब से तो फिर आमिर नज़ीर बहुत अच्छा है। ये आप समझिएगा बात को। अब टिवाणा साहब। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मुझे पता क्या लगता है, मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म, मुझे कोई है नहीं कि मैं बड़ा तंग होता हूँ या ये, आई ब्लडी इंजॉय, और मैं बहुत मोटी चमड़ी का और बड़ा ढीठ किस्म का बंदा हूँ। लेकिन मैं यार एक बात बोलूँ, कम से कम मेरे कुछ असूल तो हैं यार। सॉरी टू से, मैं कभी कभार वाकई यार सिर्फ मैं- आपके नहीं है, हर बंदे के असूल हैं। आप कहाँ यही तो कह रहे हैं, कोई खड़ा रहता है यार? जब आप इसको अमूमी तौर पर अप्लाई करेंगे ना तो वो फिर गलत बन जाता है। नहीं ना और जानू, इसमें बड़ी कलील तादाद है। और जो मैं आपको ये भी, क्योंकि उस दिन भी यार मेरी बात कंप्लीट मैंने- हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या क्या अच्छा चलें, आप मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। आई टेक 20 सेकंड। मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म ना ऐसा झूला झूला हो जाए कि जो कि मेरा अकीदा भी नहीं, जो डिमांड कर रहे हैं मैं कर दूं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरीके से बेशर्मियों के थे आप लोग उधर जाकर बात करते हैं, आप लोग मुझसे भी करेंगे, क्योंकि आप तो कर रहे हैं ना। तो मैं जो एक अच्छाई चीज़ कर रहा हूँ, फ़ायदा क्या, मैं बेवकूफ़ नहीं बन रहा। सॉरी टू से ब्रदर, क्योंकि आप तो हर जगह जा रहे, आप मतलब नॉट यू, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप समझ आइए आपको बात की। इसको जनरल जब आप करते हैं तो आप ये ध्यान नहीं रखते कि इंतहाई कलील तादाद है, वो उंगलियों के ऊपर गिने जा सकते हैं। बहुत हैं, बहुत हैं, और बहुत यार, हैं, मुझे बहुत- जाते, मैं लिस्ट बताते जाऊँगा, सब जाते, तकरीबन सब तो नहीं लेकिन काफ़ी जाते सब नहीं जाते यार, हमारी सब नहीं, इतनी सब नहीं, सब नहीं, गलत है, बात है, सब। वो तो अब 1000 बंदा हो तो उसमें अगर 22 या 25 बंदे चले जाते हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी बड़ी रेशियो है। और ऐसे लोग रिबेलियन हर कौम में होते हैं, कम से कम ये तो बड़ी कलील तादाद है अगर इतने बंदे भी हों। और वो ऐसे लोग होते हैं कि उनकी अब जी माजरत जी, आपको सिद्धू डिस्टर्ब साहब। कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। अभी जी, आधा करें। घंटा या घंटा पहले इनकी ब्रॉड लगी थी, ये वलायत साहब की। नीचे मैंने वो उनकी लिस्ट देखी, काफी अहमदी मौजूद थे जो सुन रहे थे। वो नाम ले लेके तरले कर कर के ऊपर बुला रहे थे, फलां आ जाओ, बहस करनी है, ज़िया रसूल से बात करवानी है, फलां आ जाओ, फलां आ जाओ। 3-4 लोग हैं
जो जाके बड़े शौक से चढ़ जाते हैं और उनसे मुखातब हो जाते हैं, भले वो 10 भी हो, 20 भी हो, 30 भी हो। हाँ जी, लेकिन हाँ। मैंने इनको यही कहा था कि ये कमजोरियां हर जगह पे मौजूद रहती हैं। ये अच्छा, हम यार, जितना आप मर्जी तो- समझा लें, अहमद हम भाई, कोई 10 रोजा तरबीती क्लास भी रख लें ना, अहमद तो भाई, उस अहमद भाई। क्लास पास करके बाद में भी ये इनमें से सिद्धू कुछ सियालकोटी है, ऐसा अहमद निकल नहीं है, आना। सिद्धू सियालकोटी साहब। सिद्धू ठीक है, सिद्धू हम आपकी बात की कदर करते हैं, अबे बात बड़ी की इज्जत कदर की क्या, निगाह तुम से समझो भी तो देखते हैं। सही। जहाँ पर समझिए, तुम्हारे नबी को गाली पड़ रही है, वहाँ पर जो ऊपर बैठ के 4 आदमी गया है, क्या वही गुनहगार है? जो नीचे ये साले 50 बैठे हुए हैं, इन्होंने कौन सा अपना बहन जो सरिया पिघलाया हुआ है कानों के अंदर? हाँ, यही तो मैंने ये आपको देखना। कहा है कि ये बात बताना ठीक मुझे, है। नीचे ये बैठ के मैंने वहाँ तो पे आपको कौन सी पहले हूरें कहा पट कि रहे भाई थे? मैंने तो आपको पहले कहा कि लोग तो खुदा के हुक्मों को नजरअंदाज कर जाते हैं, ठीक है। अरे यार, तो ये तो जो वाज़ो निसा आप कर रहे हैं, ये अच्छी बातें आप कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद ने सलाम यार, भी आप ली उस लोगों शख्स के से अंदर ना मैंने- जो उनके आका को गालियां देता था। तो ये मैंने मसाले अगर तो कुछ हम लोगों इनको को देखा है बताते ना, हैं। तो मैं नाम लेके जी। उनकी बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट खाकसार राजा साहब, अताउल मन्नान साहब, ये मौलवी साहब हो गए। मैंने कहा, मैं जितने लोगों, मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन ये मैं देखता हूँ कि यार जो आप लोगों को, आपके अकाबिर को गाली देते, ये लोग वहाँ नहीं होते, नहीं बैठते, सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसके अलावा मुझे ज़्यादा नहीं लोगों का पता, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि यार ये आईडी कादियानियों की है। मैं तकरीबन सबको ही देख रहा होता हूँ। जो अगर बैठते ऊपर हैं, नहीं होते तो जो नीचे बैठ के जो सुन रहे होते। बैठते हैं उनके नाम ले जरा, भला 10 से ज्यादा नाम ले सकते हैं। खुदा की कसम, मैं 10 नहीं, आपको 40 100 नाम दूंगा। 40। मुझे थोड़ा सा मुझे मेरे वो- सेंसेस में आने दो। वो मैं वही आपको बात 10 है। नहीं, शुरू 40 करता नाम हूँ। दूंगा। लिस्ट लानी है ना सिद्धू सियालकोटी भाई साहब, मैं जब- शुरू करदा। वही, और सबर लिस्ट साइड नहीं हो गया, लगानी मैंने। दे यार, साहब दे हो यार, गए, मलिक मैंने नवाज पहले हो गया। लिखा था। बोले ठीक है, सुन भी जब- ते सही ना, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ मैं ਸੁਣ लाइन ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ये ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ देखो ਦੱਸ ऊपर ਰਿਹਾ कौन आ गया। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ये राना लिस्ट- शाह, ये राना क्या है? राना वो कौन से हैं जो ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ 3-4 ਜੋ- ਰਾਣੇ ਨੇ, ਹਾਂ, 4-5 ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 8-9 ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬੱਟਾ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋ 5-8 ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਜੀ। 40 ਕੀ ਕੋਈ 70-80 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ बाबा ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ बाबा ही नहीं जानी ने आता। 8-9 तो भाई चौधरी बाबा बना जानी, देते ने। मौलवी साहब एक मिनट, मैं मुख्तसर बात करके इसको ख़त्म करता हूँ। हम में और गैरों में फ़र्क ये है कि हमारे वो लोग जो हमारी जमात, खिलाफत और निज़ाम के करीब हैं, वो ऐसी जगहों पे नहीं जाते, ठीक है। और वो लोग जो दूर हैं उनमें फिर कमज़ोरियाँ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उल्ट मामले हैं। दूसरी फिर तरफ वही- जितने फिर लोग वही। मस्जिद मदरसे के नहीं ये सियालकोटी साहब, ठीक ये है? दूसरों की हम नहीं यार, दूसरों का हम जिक्र ही नहीं कर रहे। छठो, ये ये आप- फिर वही ठीक है, criticism देखो यार, start। अगर तुझे- अगर तुझे सच्चाई चुप सुननी के- है ना, तो फिर अभी जो दिल बड़ा हमारे- करके जो सुनना। हमारे इंतजाम से दूर हैं तो वो फिर ऐसे काम तो करेंगे। और ये हर जगह सच्चाई, पे- अभी अगर सच्चाई पूरी सुननी अगर है ना, आप तो दिल कहते बड़ा हैं करके टाइम दे, सुनना। कल हम अबे ये तू तरीके यार सुनता इस्लाम भी से है ले कि नहीं आते यार? हैं। मैं गला फाड़ के बात कर रहा हूँ। यार सियालकोटी साहब, सिद्धू साहब, अच्छा टिवाना साहब, मौका दें बात करने और का। रुक जा यार, मौका तू उधर नसरुल्लाह के पास जाके मेरी साली काना पूसी करता है। बे अब्दुल्ले, मैंने अपने कानों से सुना साले। अच्छा यार, फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। टिवाना भाई बाद में शामिल होंगे। अबे ये किधर गया? ये अब्दुल्ला को किसने उतारा बे? दीवाना साहब, मैंने उतारे, आपने गैरत जगा दी है, आपको गुस्ताख नहीं बैठेगा बराबर पे। जी जी, बस सालो, अबे ये तो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ का है बे सालो। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, मुखालिफ गालीबाज को साथ नहीं बिठाएंगे। चलो एनीवेज, सिद्धू भाई थोड़ी बात तो सुन लो। आप अपना माइक भी रखो। मेरी जान, 40 बंदे उसने गिना दिए। मैं यकीन करो, मैं 60-70 लिस्ट दे दूंगा आपको। प्रॉब्लम ये, एक और बात बोलूं, देखो मैं एक बात दिल से आपको बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, हमारे यहाँ ना ज़रा सी बर्दाश्त नहीं है। मेरे खुदा की कसम, मुझे अगर सामने मेरे कोई हिंट कर दे ना, तो मैंने ऐसा ठुड्डा मुंह पे मारना है कि आपको बराबर भी कर दूंगा, जिंदगी भर आपके मुंह भी कभी नहीं लगूंगा। अगर
میرے جو میں واقعی میں میرے اکابر کو اگر کوئی کچھ بولے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ باباز, ٹیوانا یہ صاحب برداشت آپ لوگوں کے اندر ہی ہے. ٹیوانا صاحب یہ جو والی بات چیز آپ نے ہمارے کی ہے, اندر نہیں ہے دوست. نہیں ٹیوانا صاحب یہ آپ نے ہمارے والی بات کی ہے یا اپنی ذات کی بات کی ہے؟ یار میں آپ کو بتاتا ہوں نا, سنیں اس کا بھی سنیں. اگر آپ بولیں گے نا ہمارے مسلمانوں میں, آپ کو رسوخ سے کہتا ہوں, اچھا آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں 5 لوگ, یہ عامر نذیر نے گستاخی کی ہے, سارے اس کے گن گاتے ہیں. یہ جو عامر آق نے گستاخی کی, سارے اس کے گن گاتے ہیں. کیا گستاخی؟ اچھا آپ نے گستاخی حضرت علی کی جو گستاخی کی آپ نے سنی نہیں؟ قرآن کریم کی گستاخی اس نے کی تھی, وہ سنی نہیں؟ قرآن وہ جو اس نے کہا جو لوگ قرآن کرتے ہیں سب سے بڑے وہ کیا کہتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں یا وہ دور جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یار کافی زیادہ ہیں, ان کے ریکارڈڈ ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جا سکتے وہ مولوی صاحب, وہ الفاظ نہیں دہرائے جا سکتے. ہاں جی نعوذ باللہ. اور یہ جو عامر حق نے کی تھی, کیا وہ اس کے بعد تو اس کے قصیدے پڑھے گئے, معافی دے دی گئی. یہ جو سیکر نے کی تھی, یہ جو گستاخ مومن ہے, اس نے معافی مانگ لی ہے. اور بھائی کچھ نہیں ہوتا جماعت, یہ آپ اپنی ذات کی بات کریں لیکن اس کو عمومی طور پر نہ کریں, کیونکہ ایسا معاملہ ہے نہیں. ہم لوگوں میں برداشت نہیں ہے. ٹیوانا بھائی جتنی گستاخی یقین کریں یار, برداشت ہی تو ہے. آپ کو اپنی گستاخیاں ہیں. یہ جو ابھی دیکھ لیں سما باز کی گستاخی, اس نے وہ جو کیا کہتے ہیں اطاری صاحب, یار یہ مت ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. ٹیوانا بھائی یہ مت ہے, حقیقت نہیں ہے. ابھی یہ جو مجھے صرف 1 منٹ دیں گے مولوی صاحب, 1 منٹ دیں گے پلیز مجھے, صرف 1 منٹ بات کروں گا. اچھا ٹیوانا صاحب جو آپ نے باتیں رکھی ہیں میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ایگری پتہ ہے کس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ مطلب میں کچھ چیزیں اس طرح سوچتا ہوں, ٹھیک ہے, میرے بھی ذہن میں آتی ہیں جو آپ کی آ رہی ہیں. مزید میں جو سمجھتا ہوں کہ میجورٹی بہت ہی اچھے لوگوں کی ہے, اور بہت سارے لوگ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ایسی جگہوں پہ نیچے بیٹھ کے کیسے سن لیتے ہیں. میرا آج تک یہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے جو آج آپ نے اٹھایا. مجھے اوپر والوں سے پرابلم نہیں ہے, اوپر والے مٹھی بھر لوگ بھی نہیں ہیں. جیسے اس طرف تو میں نے بڑے بڑے نام بتا دیے ہیں, اور یہ مولوی صاحب نے عامر حق, اب ٹاپ آف دا لسٹ اگر آپ نام گنیں گے نا 10 کے 15, اب مجھے صرف کل ظفر اللہ شاہ صاحب کی مثال لے لیں. راحیل کے منہ سے ختم نبوت کو لے کے وہ ایک لفظ نکل گیا, راحیل نے 1 بار بولا ہے, شاہ صاحب نے اس کو 7 بار دہرایا. میرا سینہ جل گیا, مجھے تکلیف ہوئی کہ یار ختم نبوت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ٹائٹل رسول اللہ سے منسوب ہے. اصل تو ہم اس کے حقدار اپنے آپ کو وارث مانتے ہیں رسول اللہ کی اس نبوت کو. آگے جو ہے کیا کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے نیا ٹاپک نہ سٹارٹ کریے. تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹیوانا صاحب ادھر تو چند ایک لوگ ہیں جو اس طرح کا کمپرومائز کرتے ہیں, ادھر تو بڑے بڑے ان کے جن کو یہ اکابر کہتے ہیں انہوں نے شاطمیتیں کی ہوئی ہیں کھلی, نہ انہوں نے رسولوں کو بخشا نہ انہوں نے نبیوں کو بخشا. جو شاطمیت ادھر ہوئی ہے, جو قادیانیوں نے شاطمیت نبیوں کے نام لے کے کی ہے, 1,24,000 نبیوں کی ماں کو گالی دی ہے, آج تک اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا بھائی جماعت کی طرف سے؟ بتائیں, اس کے اوپر پردے نہیں ڈالے گئے؟ آپ ہمیں تو گستاخ کہہ رہے ہیں, آپ اپنی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں طاہر کی. او یار طاہر, یہی تو طاہر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ مفتی مبشر نے جو نعوذ باللہ سورۃ فاتحہ کی جس طرح تفسیر کی, جو کچھ وہ اکیلے جا کے ادھر جو کچھ کرتا رہے, کس نے کہا کسی نے مولوی صاحب اس کی کسی نے صفائی دی ہے؟ کسی نے کہا ہے اس کو ینگ بلڈ کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس جتنا نیک بندہ ہی کوئی نہیں, وہ تو اسلام کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں دائی ہے وہ. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو آپ ہم نہیں, یہ عامر نذیر صاحب کہتے ہیں, سارے کہتے ہیں. یہ پوچھ لیں کسی سے بھی ختم نبوت مجاہد سے. جی السلام علیکم. اور کسی بڑے آرام سے بات ہوئی تھی, اور کسی بھی گستاخی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, احمدی گستاخی کرے تو اس کی جسٹیفیکیشن ہے, بالکل ہے. وہی بات کوئی کر رہا ہوں جسٹیفیکیشن کسی کی بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو نہیں چھیڑنا, علمی گفتگو کرنی ہے, پلیز علمی گفتگو کریں. ایک دوسرے کو ہم نشانہ نہ بنائیں, نشانہ بنائیں گے تو پھر وہ ہم پر بات آئے گی
और कौन फिर बात कर रहा वो इसलिए हमें फिर वो दफा नहीं करना बना रहे हमें यार, मजबूर वो है। निशाना नहीं बना ठीक रहे है, यार। मैंने ये बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हम जो ब्रॉडबैंड जाते हैं ना एमपी वालेकुम सलाम। निकालते हैं, हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, हमें बहुत तकलीफ होती है कि जो भाइयों एमपी मर जाते थोड़ा हैं। थोड़ा सबको मौका दिया जी जाए। जी, हाँ जी, करें राव करें साहब बात को करें। हाँ राज बोल साहब को बोल भी यार, दें यार। बोल यार। जज़ाकल्लाह टवाना भाई की हाल जी? ठीक ठाक हूँ यार। हाँ जी, और तार भाई सब खरीत है? मैं काफ़ी देर से बातें सुन रहा हूँ, तो जो टवाना साहब हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात इतनी सिर्फ है कि क्यों ऐसे इशू बनाया हुआ है बात को। टवाना भाई ये कह रहे हैं कि जिधर आपके अकाबरीन को गालियां निकालते हैं उधर ना जाओ। बात इतनी है, हाँ जी, सिर्फ अपनी ज़ुबान की खारिश के लिए जाते हो। अगर हाँ आप, हाँ जी, अगर टवाना साहब आप मुझे गाली देंगे, मैं आपको गाली दूंगा, तो बराबर हो जाएगा। हाँ जी, ये अकाबरीन को गालियां दिलवा के फिर उधर ही जाते हैं। मामला इतना है सिर्फ। एग्जैक्टली ये मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग घुमा कर अभी पता है क्या, ये लोग यार प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी क्या है कि जब बात हो ना, वो लोग यही बोलते हैं मैं कादियानी से बात कर रहा हूँ तो मैंने बात हर ऐसी बात करनी पे है पर्दा डालते कादियानी हैं के यार, खिलाफ, हर या बात। वो अब कादियानी बात करता है तो वो बोले हमारे ओ भाई अपने अंदर झांको, अपने गिरेबानों में झांको यार। बिल्कुल, ये एक दूसरे को गालियां दें अब इस मामले में भी टिवाना साहब हाँ ये जो मैं मामला बात कर रहा था, है, ये मुझे मामला 3 आपने लोगों ने उठाया। तो कि मेरी सारी अब बात इसमें ही जो है वो आधे में छोड़ अब के इसमें आपने सर, ये इनकी क्या है? हाईलाइट की है टिवाना साहब, इसमें आपने इनकी थोड़ा गलती सब्र हाईलाइट करो, की है कि आप थोड़ा इस तरह टाइम करते करो। हो। अब इसमें भी पर्दे मिट्टी डाल रहे हैं ऊपर, कैसे इसको लपेट रहे हैं, नहीं यूं नहीं है, यूं है, यूं नहीं। यार को कोई तो सीधी बात का जवाब सीधा दे दिया करो यार। इस तरह ये कह रहे हैं ना कि ये थोड़ी पॉलिटिक्स या ये 2 नंबरी नहीं चलती। बात जो है ना वो सीधी और साफ करनी चाहिए, और जो अपने गिरेबान को देखना चाहिए कि अगर किसी ने बात की है तो बजाय इसके कि इल्ज़ामी तौर पर दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ें, ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए। सरकार साहब आपको यकीनन मसला इसका नहीं बनना चाहिए था जिस तरह जज्बाती हो कि आप ये कर रहे हैं बात। अगर आप इतने ही सच्चे खरे हैं इस मामले में तो सीधा कहें कि हाँ ये गुस्ताखी उसने की है, मुफ्ती बशर ने, हाँ अमर नदीर ने किया, हाँ बहरीन 313 ने की, उसके बाद अमर नदीर साहब ने वहाँ पर डेरे डाल दिए, तो इससे बड़ा मुजाहिद ही कोई नहीं। मौलवी साहब जिस बात की तरफ टिवाना साहब तवज्जो दिला रहे हैं उस पे आप क्यों उधर उधर जा रहे हैं? उसका मैं सीधा तो टिवाना जवाब साहब की हमायती हूँ, मैं तो टिवाना साहब के साथ हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि जो कुछ टिवाना साहब कर रहे हैं 100% दुरुस्त कर रहे हैं। मैं तो उनका सपोर्टर हूँ कि ये बिल्कुल 100% लोगों को जुबान की चस्के हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा तुम लोग सारे हौसला अफजाई नहीं तुम करते, लोग हमें भी कैसे तकलीफ हो मौत जाती होए, है। नीचे देखा भी तो करो, कोई माइक भी तो दो होए। अच्छा टिवाना भाई, मैं आज क्योंकि दिन नू गर्मी सी बड़ी थे, काम आज दिन नू कीता, रात नू नहीं करना, इस वजह तो मैं इजाजत चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर कल होगा जी। किसी ब्रॉड पे आप नजर आए तो आप पे जुर्माना होगा मौलवी साहब। नहीं, नीचे बैठ के सुन सकता हूँ, घर में असल में मैं ना वो लाइव ऊपर नहीं आता, नहीं, अनलेस ठीक है, कोई बच्चे सो जाए। हाँ जी ठीक है ठीक है। हे यार कुरान करीम की तालीम है कि लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बातें दूसरों को क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सलाम। दीवाना भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है, इतना एनर्जी से भरा हुआ स्टिंग पी है। मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास एक मजेदार सा सवाल है आपके टॉपिक को लेकर। सोचा होगा नीचे कि इसको किसी तसल्ली तरह से घुमा के डाल दूं मुसलमानों पर, हैं? नहीं आपको पता है मेरी मैं ऐसी बात करता ही नहीं। आप सवाल सुने, आपको मजा है। सारे स्पीकर्स को उतार रहा हूं, मुझे मोड से हटाना तो हटा देना, मुझे कोई बात नहीं करने दे रहा। ये क्या बात मुझे है? एक जुमला, एक सवाल करने दे यार ताहिर, पहले फिर मुझे उतारना है यार। ओके भाई, सवाल ये है तिवाना भाई जी कि जी जो अहमदी ऐसी ब्रॉडो पे जाके बैठता है, हाँ। जब वो आपके पास आता है तब आप ये सवाल उससे क्यों नहीं करते? आपने ये सवाल उठाया उन अहमदियों के आगे जो कभी किसी ब्रॉड पे नहीं जाते, ऐसी ब्रॉड पे जहाँ पे गाली दी जाती हो। जानू अब मेरा आपसे सवाल है, नहीं सुन तो लेना। हाँ बोलो। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हजरात ऐसी ब्रॉड पे जाके बैठते हैं, आप उनसे क्यों नहीं ये सवाल करते कि भाई तुम्हारी गैरतें कहाँ हैं? अच्छा वही बात है ना, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको क्या लग रहा है कि मैं ये बात मौलवी साहब को कर रहा हूँ?
آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات میں اسٹوڈنٹ کو کر رہا تھا جو اس کو اوپر بلایا تھا؟ اسٹوڈنٹ تو آپ سب میں بڑا سخت آدمی ہے، سب سے زیادہ. اینی ویز دیکھیں تیوانا بھائی میں سن تو لو جواب. وہ کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نند کو بولو، پتہ نہیں کیا سناؤ اس کو. ایسا نہیں ہوتا نا تیوانا بھائی. جانو میں آپ کا کوئی ممی ڈیڈی تھوڑی ہوں کہ میں نے اس کو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ابھی ملک بھائی ڈائریکٹلی میسج جا رہا ہے. ایوان صاحب آئیں گے، سن تو لینا. ابھی ملک ایوان صاحب آئیں گے یا کوئی اور بھائی ہمارا آئے گا جو گالی دیتا ہو، آپ کو پتا ہے آپ اس کے سامنے کبھی بھی سوال نہیں کھڑا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی زبان گندی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی غلط بات کر دینی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو ایشو آپ نے اٹھایا ہے، یہ آپ نے اٹھایا ہی ان لوگوں کے سامنے ہے جو گالی گلوچ نہیں کرتے، نہ ان جگہ پہ بیٹھتے ہیں، نہ اس محفل میں بیٹھتے ہیں. اور جتنے لوگ بھی آپ کو جواب دے رہے ہیں مرزا صاحب نبی کس کا ہے؟ وہ سارے کے سارے بیچارے کس کے ہیں؟ مرزا صاحب نبی کس کے ہیں؟ جناب علی دیکھیں سن تو لینا، جواب تو دینا. آپ کے ہیں نا، آپ سب میں دیا نا، میری نظر میں تمام جہان کے. مجھے تھوڑی. ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں مجھے پرابلم ہے، اس لیے میں نہیں جاتا. تیوانا بھائی میں نہیں جاتا. آپ نے مجھے کبھی دیکھا؟ میں جانتا ہوں میں آپ سے پرسنل بات نہیں کرتا. میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایک ایسا بندہ جو جاتا ہو وہ آپ کے پاس مائک پر ابھی آ جائے نا، ابھی میں آپ سے، مجھے معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہے، ذرا سی ڈپلومیٹک پالیسی کھیلنی پڑتی ہے، بھائی بندی کرنی پڑتی ہے، تمیز کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. آپ یہ سوال اس کے سامنے نہیں کھڑا کریں گے کہ بھائی تیری غیرت کدھر ہے. یار میں تو کھڑا کر دوں، لیکن میں پتہ کیوں میرا کام نہیں ہے یار. آپ نہیں، آپ کی بات چیت خراب ہوگی ان سے. نہیں تیوانا بھائی، آپ کی بات چیت خراب ہوگی ان سے. آپ یہ مانیں کہ آپ نے ان سے بھی اچھی بات چیت بنا کے رکھنی ہے جو گالی دیتے ہیں احمدیوں میں. میں غیر احمدیوں، میں باقی مسلمانوں کی غیر احمدیوں کی بات نہیں کر رہا، میں احمدیوں میں بات کر رہا ہوں. آپ نے ان سے بھی بنا کے رکھنی ہے، اور جو کہ ایسے ہی ہے نا، تو آپ اس میں مانیں کہ آپ ڈپلومیٹ کھیلتے ہیں. ابے تو میرے کو کیا لگے، میرے منہ پر بیٹھ کر لوگ گالی دے رہے ہوتے، مجھے تھوڑی نا فرق پڑتا ہے یار. آپ کا دماغ ہے کہ کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو بات کرنی میں نے تیوانا بھائی سوال مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار. جی لیکن آپ سوال تو ان کے آگے کھڑا کر رہے ہیں نا. مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر بیٹھا ہوا ہے، راجہ صاحب یہ عجیب بندہ ہے، میرے پہ رکھ رہا ہے یہ، میرے پہ یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. آپ کو برا بھلا بولتا ہے اللہ کے بندے. اتنی گندی ایگزامپل ہے آپ کی، اتنی گندی کہ آپ کی حد ہے یار. بالکل بھی تیوانا بھائی دیکھیں، میں اب تو اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں نا. میں کوئی ڈپلومیٹک میرے بھائی، آپ مجھے دیکھیں تیوانا بھائی، آپ اپنی ذات کی بات کر سکتے ہیں، میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں. یار جانو میرے پہ اپلائی نہیں کرتی یہ چیز. میں مانتا ہوں جو آپ نہیں، آپ پہ یہ اپلائی نہیں کروا رہا. میں جو آپ پہ اپلائی کروا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بات خراب ہوتی ہے. بھائی میرے، آپ کو یہ بات کا لگتی ہے کہ میں لوگوں سے اس بات پر لڑتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کو برا بھلا بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ سوال کھڑا کرنے پہ ایک بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یار یہ سوال آپ سے بنتا ہے نا. اب یہ سوال میں عبداللہ سے کروں گا جو نیچے بیٹھا ہے، وہ رکھ کے چانٹا مارے گا میرے منہ پہ، اور مارنا بھی چاہیے کہ میرے کو اس سے یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں. آپ سے بنتا ہے. کون عبداللہ؟ وہ نیچے عبداللہ، اس باقی سمجھ گئے، یہ میرا ہی عقیدے کا مسلمان بیٹھا ہے نا. ٹھیک ہوگا، یوں بات کریں، میں سمجھ جاؤں گا. لیکن بات یوں ہے تیوانا بھائی، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جن احمدیوں کے سامنے یہ سوال آپ نے رکھا اور جو بیچارے سارے جواب دے رہے ہیں اس حوالے سے، وہ کسی بھی ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے. اور میں اگر مجھے پتا ہو کہ اس محفل میں اس طرح بات ہو رہی ہو تو یقین مانے میں کبھی نہ آتا ادھر. میں اپنی ذات کی بات کروں کہ جو آپ نے ایک معیار رکھا ہوا کہ کسی کے بھی اکابر کو گالی نہیں دی جائے گی، اس معیار پہ خاکسار یہاں پہ آتا ہے. ورنہ تو آپ نے کس میری جان کرامت بھائی، آپ پہ تو بات نہیں ہو رہی پرسنل، ایک جنرلائز بات ہو رہی تھی، اسی میں لو آپ پہلے گھما کے لائے میرے پر، وہ اپلائی یا فٹ ہی نہیں ہو رہی وہ بات. بالکل ہو رہی ہے تیوانا بھائی. آپ جانتے ہیں کہ ملک ایوان صاحب سے آپ یہ بات نہیں کریں گے کہ ملک ایوان صاحب سے میری خراب ہوگی. ہاں جی، کیونکہ آپ کی ان سے بات اسی لیے نہیں کریں گے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یہی تو، مجھے آپ لوگوں سے پرابلم پتہ کیا ہے؟
आप लोग सोचते हो मैं आपका मम्मी पापा हूँ? सीरियसली, यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी। ओ भाईजान, नो नो मैं मैन, जाकर ये बोलूंगा मलिक अवान साहब की ब्रॉड पर, उनको ये बोलूंगा कि आप ना जाया करें, मिर्जा नहीं साहब नहीं, को मैं जहाँ गाली ये पड़ रही मैंने तो होती है। ये नहीं, ये जो सवाल है ना आपका, ये एक सवाल, एक कभी बात, एक बात है, कभी लाइट मूड में कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अबे यही यार, अल्फाजों में हद कीजिएगा, हो गई यार। लेकिन एक बात है ना कि मतलब आप गैरत पे बात है कि भाई तुम लोग की गैरतें किधर हैं। यकीन माने कि भाई हम तो सुनते ही नहीं है। आपने शाम को, मैं आपको एक ब्रॉड पे सुन रहा था, और उस टाइम पे आमिर नजीर साहब के साथ यहाँ बैठे हुए थे, आपने उनको ये कहा कि यार ये बंदा डिबेट करने की भीख मांग रहा होता है। कितने अच्छे अहमदी या मुनासिब बात करने वाले अहमदी उस शख्स से बात करते हैं, कुछ करते हैं अहमदी। मैं ये भी बात आपकी बिल्कुल बजाय, और वो गलत है अपनी जगह पे, आपका जो सवाल है मैं उससे एतराज नहीं है, लेकिन आपका ही बयान था शाम में कि वो भीख मांग रहा है। यार करामत भाई, आप अपना केस वीक पे वीक करी जा रहे हो। तो करामत भाई, बोल रहे हो, मैं मुझे इसका वो जब जवाब भी मेरी नहीं बारी देना। खाएंगे, जब मेरी बारी लेंगे तो वीक ही होगा केस। पूरा वीक करते जा रहे हो यार। स्टूडेंट को भी जरा टाइम दे दे ताहिर भाई। ओ ताहिरा, मॉडरेटर ताहिर इनवाइटेड। अबे ऊपर बैठा हुआ है, तू इनवाइट कहाँ कर रहा है इसको? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम स्टूडेंट। क्या हाल है भाइयों का? ठीक है, सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक स्टूडेंट। आईक्यू लेवल और एक्सपेक्टेशन लेवल दोनों चेक कर। आईक्यू भी चेक कर, एक्सपेक्टेशन भी चेक कर। हाँ जी, वो यही तो मसला है ना, हम गलत बंदे से गलत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं। वो जो सवाल ये तिवाना साहब से करने वाले सवाल हैं माजरत के साथ यार, वो भाई, वो उसका, वो हमारे ना ही वो कीदे का है ना, वो सिर्फ रिस्पेक्ट में जितना भी हमें वो जो प्लेटफॉर्म देता था, देगा या जो भी है, वो उसने एक बात की है। आप यहाँ पर अगर उसको ही कोसोगे तो वो कहेगा ठीक है, मैं भी फिर उन्होंने नाल ही गालां काटना जाके बह के। ये बात समझने वाली है, जो पता नहीं इतना सिंपल सा सवाल है क्यों नहीं समझ आता। और कोई इसमें ऐसा कुछ चीज़ भी नहीं है जो ना समझ आए। अगर टिवाना साहब को ही आप वो उसमें कटहरे में खड़ा कर देंगे तो ये कौन सी अक्लमंदी है, मुझे ये बात बताएं। उसने एक बात की, आप उसे एग्री करें, डिसएग्री करें, फॉरवर्ड कर दें, छोड़ दें इस टॉपिक को। आप उसको कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते। भाई उसका लेना देना नहीं है ना, उसका इससे क्या लेना देना है। हमारे काबर के बारे में अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करे तो टिवाना का उससे क्या लेना देना है। वो हम सबको बगैरत कह रहा है, ठीक है, हम एग्री कर देते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो हम भी करते हैं। चलो, कौन कह रहा है? चलो सिद्धू भाई कौन कह रहा है? एक मिनट यार, सिद्धू भाई से बात मैं तो चुप हूँ, मैं चुप। सिद्धू भाई, मैं माइक ही बंद कर देता हूँ। सिद्धू भाई, सारी अभी टिवाना भाई ने जितनी सारी बातें की हैं वो सारा यही तो बता रहा है कि तुम में गैरत नहीं है। तो जिसमें गैरत नहीं होती वो क्या होता है? तो भाई वो ये कह रहा है कि जो आप जिनको नबी मानते हैं, अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं, उनको लोग अगर उनकी तकजीब कर रहे हैं, तकफीर कर रहे हैं, तो वहाँ की वो बात कर रहा है कि उनमें हमें बैठकर वो काम नहीं करने चाहिए। अगर लोग वहाँ पे बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में ये काम हो रहा है और 12 दफ़ा हो रहा है, तो वो फिर गैरत की कमी होगी फिर उनमें। तो इसमें कौन सी गलत बात सिद्धू भाई इसने टिवाना ने की है? वैसे बात उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसको यही सिर्फ इतना कहा है कि 100% हर जगह पे जो अरे छोड़े वो इस सारे हमें सिर्फ इतना आपके पास दो स्टूडेंट साहब, आपके पास 2 फोन है अभी? मेरे पास तो बहुत ज्यादा फोन है, करना क्या है यार? एक मैंने आपको वो क्लिप भेजा, जरा इसी ऐप आईडी पे वो प्ले कर सकते हैं प्लीज? एक मिनट मैं चेक करता हूँ पहले। ताहिर आपने बात करनी थी, कर लें। आप गुस्से में हैं वो तो प्लीज। आई थिंक वो बात करने से बेहतर है वो जो है ना, वो मैं ऑडियो ही प्ले करवा देता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है। वो थोड़ा लेकिन प्लीज आपने ना थोड़ा सा संभल के रहना है, ठीक है? जी नसीर अंकल, मैं कुछ भी नहीं, किसी चीज में ठीक है, इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। जज़ाकल्लाह। ये छोटा काका है, काका
अस्सलामुअलैकुम। साहब कल आपने काका काका कह के जो वालेकुम मुझे मलिक गालियां साहब, क्या पड़वाई हाल है है? ना, आप मुझे काका ना का करें। आप मुझे, आप जो कल कह रहे थे ना, जिस तरह बच्चा है बच्चा यार जाने ताहिर दें। मुझे नहीं मिला आपका कोई मैसेज नहीं मिला। एक मिनट जरा इसी आईडी पे भेजूं, दूसरी पे भेजूं? किस फोन पे है वो आपके लिए? दूसरे पे भेज दो, दूसरे पे भेज दो। इस बात को टवाना साहब की बात को ना हमने चीगम बनाया। ये बात 2 लफ्जों में ख़त्म हो सकती थी, मगर हमने ऐसा खींचा है, उसको ऐसा खींचा है। हमारे लोगों में बिल्ड इन है, हर बात का हमने जवाब लाजमी देना है, अपने जियो तरीके से देना है। जियो बात ये है वो ठीक है, वो टवाना ने ये बात की है जो टिकटॉक पे के लोगों की बात की है ना, उसने ये तो नहीं कहा तुम्हारी सारी जमात में। हमारे टिकटॉक पे आप देख लें, हमारे एमडी कोई भी बात होगी आगे से अब सीखता कोई भी नहीं है। अब गैर एमडी हैं जो इनसे आप सवाल करें, कोई सवाल करें, वो सीधा आपके मुंह पे जवाब देंगे, हमने इसका जवाब नहीं देना। और हमारे एमडी को कोई सवाल करेंगे, उसके 50 दफा सवाल वो करेंगे, 50 दफा जवाब देना शुरू होने हैं। और जहाँ पे रह गई गैरत की बात, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को एक बंदा हर दूसरे दिन गालियां देता है, हर दूसरे दिन बुरा भला कहता है। हमारा कोई ना कोई बंदा उसी की तबलीग कर रहा था। हमें इतनी जोर की तबलीग आई भी है कि दुनिया में हमें ये 10-20 जो है ना, जो बदजुबान टाइप के लोग हैं, उनके साथ ही बात करनी है जाके। अब ये फैजान साहब हैं, ये भी मुखालिफ है ना, प्यारे ये मुखालिफ है ना। साहब थोड़े यार काम डाउन हो जाए, ये ऑडियो सुने, आपको बड़ी मजे की ऑडियो सुना रहे हैं स्टूडेंट साहब जी चलो ठीक है, ओके। और बताएं आपकी सेहत पे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अब ताहिर के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई है, तो उसका मतलब है कि उसके बुजुर्ग जो पेरेंट्स हैं, जिसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी गल में की थी स्टूडेंट साहब, वो साबित हो गई ना। एक नुमाइश के इस्लाम के दुश्मन ने ताहिर एक मिनट यार, एक मिनट। अब मुझे ये बात बताएं, वो बात साबित नहीं होगी जो मैंने पहले कही है स्टूडेंट साहब। हाँ जी, अब मुझे ये बात बताएं कि अगर आपको लगता है कि ये इस्लाम की दुश्मनी कर रहे हैं, बकौल इनके कि ये अखलाक से बात कर रहे हैं, टवाना साहब, अफजल बड़ाई साहब, सरकार साहब, तो भाई आप तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे जिनका लेना देना नहीं है जमात के साथ। अब जब इनके वालिद साहब की ये जो धमकी उसने दी है, वो जो टिकटॉक का बदमाश है, जो जिसको सरकार साहब कह रहे हैं, अगर कल को ताहिर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे वो तस्वीर लगा देते हैं, तो उनके वालिद साहब तक जब वो कोई पोस्ट पहुंचाएगा, तो क्या वो ताहिर की तरफ आएंगे या उनकी तरफ जाएंगे जो उनके वालिद साहब की तस्वीर लगा के बेहुरमती करेंगे? साहब अभी आपने बड़ा गौर से सुनना है बात। बिल्कुल इसे वास्ते अपना सरकार फैजान साहब ने इन्हों का नाम कंटूटे रखा है। कंटूटे कंटूटा की परफेक्ट मैनिफेस्टेशन। मैंने एक गल दसो, तुसी ते मेरे वालिद साहब की भी मिसाल ले लो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਭਰਾ, 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਨੇ, ਨਾਸੂਰ ਔਰ ਖਨਜ਼ੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ चल यार काफी है मेरे ख्याल में ये सब नहीं पूरा आगे ये थोड़ा सा क्लिप और है ये, प्लीज यार बहुत लंबा क्लिप है। नहीं हो सकता कितने इंडे साल पहला कोई इस्लाम की तलाश में जाए तो मेरा नाम डिलीट कर दें। बिल्कुल ठीक है बैस साहब, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਚ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ, ये थोड़ा आपने एक क्लिप एक जो है ना वो छोड़ दिया है, उन्होंने क्या बचाओ इन्हें तो बचो, और आज बड़ाई साहब की नहीं से सुलह हुई है। चलो यार वो देखो ताहिर, उसके ऊपर हमें क्या जरूरत है कहने की और ये देखिए ये अब्दुल्ला, ये गंदी नस्ल का घर वालों की तरफ आता है, चल नहीं कर टैप कर ना दे यार गाली, यार छोड़ दे यार। वो नीचे जो है वो यार इंडिविजुअल लेवल पर गाली का जवाब नहीं दिया करता है, दफा कर यार।
جو تجھے گالی دے رہا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا دوست. یہ تو وہ پتہ کیا وہ تو دے بولے گا اگلا اور دے گا, دیتا رہے گا. ابے دیتے رہو. اب نصر اللہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے میرے لیے, کرتا رہے, کیا فرق پڑتا ہے. بھائی مزاق کسی دن سامنے سامنے ہوئے تو ٹھیک ہے, میں اپنا دیکھ لوں گا, تم اپنا دیکھ لیں, جس میں زور ہوا کوئی بھی ہو, دیتے رہو گالی, کیا فرق پڑتا ہے. اینی ویز, آج جب میں عامر نذیر صاحب کی براڈ پہ گیا تھا اسٹوڈنٹ, میں گیا, یہ وہ جو بھی کر رہا تھا, جو بھی ہوا, اس نے مجھے کیا بولا چھوڑو, میں نے اس کو کیا بولا وہ بھی سب چھوڑو, سب باتیں چھوڑنا. اس میں سے کہ آپ کسی سے منگوا لینا, ایک چیز اس میں صرف سننا. اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ریکارڈنگ میں آپ کو ملے گی, تو چاہے کچھ بھی کر لے, تو چاہے کچھ بھی کر لے, برا بھلا مجھے گالیاں دے رہا ہے یا جو بھی ہے, میں نہیں کہہ رہا گالیاں یہ سب دفعہ کرو, وہ تو میرا اور اس کا مسئلہ ہے. میں اس میں ایک چیز جو آپ لوگوں کو غور کرنی چاہیے, اس نے یہ کہی تھی کہ تو کچھ بھی کر لے, ہمیں دن میں 3-4 قادیانی مل جاتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے لیے. یہ ایگزیکٹ لفظ ہیں اس کے. یہ آپ سن لینا, اگر آپ کسی کو اگر وہ ہونا کہ ڈاؤٹ, یہ سن لینا, یہ آپ لوگوں کے لیے. میرا مسئلہ مسائل کسی کے ساتھ ہے, چلے گا, رہے گا, نہیں رہے گا, وہ علیحدہ بات ہے. یہ صرف ایک آپ لوگوں کی سیلف ریئلائزیشن کے لیے یہ لائن کافی نہیں ہے. میرے ذہن میں ابھی آئی جب یہ ریکارڈنگ چل رہی تھی. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ویسے ان کے لیے. بڑا کمینہ ہے سرکار کافی ہے یہ ڈیڈی کے سرکار رانا راجد کو سدھو بھائی نام لے کے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ لائن پہنچائیں. کیا کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بولے ملک صاحب, سدھو بھائی بول رہے ہیں, بولیں بھی تو صحیح آگے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لائن آپ نے بولی ہے نا کہ ان کو 4 لوگ مل جاتے ہیں ہاتھ پھیرنے کے لیے, تو میں نام لے کے کہتا ہوں کہ طاہر امجد صاحب یہ لائن نوٹ کر لیں, رانا راشد یہ لائن نوٹ کر لیں, اور کچھ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے. ہاں میری جان یہ بات ہوئی ہے, یہ آپ نکالیے گا. نہیں سدھو صاحب, پیارے بھائی, صرف ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے. جو لوگ رانا راشد کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں, جب وہ چھوڑ کے آ جاتا ہے ادھر سے اپنی بروڈوں پہ اٹھاتے ہیں, ہاں جی رانا صاحب آؤ ساڈے نال بیٹھو, ہاں کی ہویا کی نہیں ہویا. طاہر امجد کو بھی جو اٹھاتا ہے اس کو بھی غور و فکر کرنا ہے. جو سنتے بھی ہیں ان لوگوں کو, ان کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ بھائی جان جن لوگوں کا اتنی بغیرتی کر کے یہاں ایسی حرکتیں ادھر کرواتے ہیں, ادھر پھر آ کے ایم ڈی او میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یار شرم تو ایم ڈی او کو کرنی چاہیے کہ کیوں بٹھا رہے ہو اس طرح کے لوگوں کو. انہوں کا بائیکاٹ کرو, ان کو فارغ کرو, ایسے لوگوں کو بٹھانا ہی کیوں اگر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا. نہیں تو کھلے ہو جاؤ, ننگے ہو جاؤ سارے, ایسے ہر بندہ ایک دوسرے نال گل بات کرے, جو مرضی کرے بھائی, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اے ہوندی ہے گل. چلو خیر, یہ بات کرنی تھی کر دی یار. لیکن یہ کہ اس کو بھائی میں نے اچھے اس میں نوٹ میں کہی ہے, آپ کو مطلب دوست یار ہو تو کہہ دی. صاحب ہم آپ کی ایڈوائس کی بڑی قدر کرتے ہیں. نہیں آن اے ویری سیریس, دیکھ میرا بولنا بھی نہیں بنتا ہے عقیدے کے لحاظ سے, لیکن میں آن اے فرینڈلی نوٹ بولا ہے میں نے. جی, ساتھ ہی ساتھ تھوڑا یہ بھی غیرت دلا دینی چاہیے, بیٹھے ہوئے ختم نبوت کے مجاہد, ان کے بڑے بڑوں نے, ان کے علماء نے ایون کے یہاں پہ گستاخیاں کی ہیں, جیسے کہ وہ سیکر ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, اللہ معاف فرمائے, سلطان نے کی. تو یہ لوگ ان کو لیڈر بنا کے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں صبح شام. تو ان کو بھی چاہیے اپنے لیڈر بدلیں. میں تو بلکہ ان کو دعوت دیتا ہوں بھی اپنی صفوں میں اپنے ریوڑ میں سے کالی بھیڑوں کو نکالیں, کہنا چھوڑ دیں. طاہر پلیز آپ شیشہ نہ دکھاؤ, سرکار کو بہت غصہ آتا ہے.
खतबे सरकार को नबूवत बहुत के गुस्सा आता है। खतबे नबूवत के मुजाहिदों को चाहिए कि टिवाना साहब के हाथ पे बैठ करें। बहुत क्लियर एटलीस्ट आपको अगर तस्वीर साफ सुथरी नजर आएगी अपनी तस्वीर। मैं कहता हूँ मेरे कि पास अगर भी शीशे- यकीन माने, मेरे से को पूछेगा, इनकी साइड में सिर्फ एक ही गैरतमंद बंदा बचा है, वो है टिवाना। और सरकार भाई थोड़े थोड़े से थोड़े से कभी कभी इनमें थी, ये पिछले 10 नहीं, दिन से सरकार वापस भाई आ की गई जो है गैरत है वो उधर। वक्त जरूरत हाँ मेरे अंदर थी, लेकिन जब से मैंने आपकी गैरत जगाना शुरू की मलिक है साहब कह रहे हैं मुझे भी सरकार में जगाना गैरत थी। हाँ, अब नहीं है क्योंकि अब इनकी गैरत जगाने चला हूँ। बवक्त जरूरत जागती है। इनकी गैरत जगाने की तरफ कोई आएगा टिवाना साहब, वो बेगैरत हो जाएगा। नहीं हमने नहीं कहा आपको क्या पे, अल्लाह माफ करे। आप 3 दिन हमारे बाद टिवाना साहब आप भी बेगैरत फिर हो जाएंगे, ये कहेंगे टिवाने में भी गैरत थी, अब नहीं है। ना फैजान भाई, अपने आप को ना कहें, अपने आप को ना कहें, किसी ने नहीं कहा। ये कह रहा हूँ हमने कि तो सिर्फ ये कहा, हमने तो ये अच्छा मलिक साहब, नहीं, मलिक साहब हमने तो जी थोड़ा सा सरकार को भी फंसाते हैं ना। अच्छा मलिक साहब, मेरी बात सुन लेना, मेरी बोले, बोले। ठीक है, सही है। मैं ये कह रहा हूँ इनकी गैरत भी हम पे आके जागती है। 2-3 दिन से ना वो जी मलेशिया में जो औरत है ना, वो देखे मुरब्बी ने ये किया, मुरब्बी ने ये किया। और टिकटॉक पे ये जो हमारी मुसलमान बहनें बैठी हुई हैं, उनके मतलब कभी इन्होंने कोई बताए अटवाना भाई, कभी सरकार ने कभी कोई लफ्ज है कहा? आपका जी मौलवी साहब, कभी जवाब कहा? दीजिए सरकार, जवाब दो। कौम आपसे पूछ रही है सरकार। सरकार वहां जाके खुद फूल मारते हैं, डोनट मारते हैं, डोनट। मलिक साहब अल्लाह की कसम अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास शार्प शूटर की वीडियो है, वो फूल मार रहा है और बातें कर रहा है। तो साथ लड़की को कह रहा है यार मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके किसी ने दे दी ना तो मैं बहुत बुरा फंसूंगा। हाँ वो नहीं, वो किसी ने चलाई है, आप लोगों में से किसी ने चलाई है, मैंने देखी है इधर ही चलाई है। अस्सलाम वालेकुम टवाना साहब, क्या हाल है नासिर भाई, ठीक ठाक हो? सलाम, मर्दाना वजाहत, मर्दाना आवाज। ओ यार मेरी ते अज उत्थे वड़ैत साहब दी बराड़ ते लड़ाई भी हो गई और राणा साहब जेडे ने डिबेटर अहमदियां दे उन्हां ना काफी लड़ाई होई है। ते ओ गल ए वे भी कल दी गल है, परसों दी ओ चौधरी नसरुल्ला ते जो भी उत्थे गालां मालां एक दूजे नूं टवाना साहब उन्हां नूं बंदे ओनू असीं पुछया भी तू उत्थे बैठा सा थल्ले ते कोई गालां गूलां होईयां ने? आंदा मैनू पता ही नहीं, मैनू तो पता ही नहीं, मेरे फोन ते हाँ। एडा मुनाफक बंदा यार, बराडां लांदा अहमदियत दियां ते बांदर वंगरू हर बराड़ ते जंप मार के चढ़ जांदा। मैं किहा कुछ हिया कर, तू तो यार मुनाफक बंदा है ते इत्थों वड़ैच दी बराड़ तो तुर जा, तेरे को तैयारी होएगी ते मुनाफक बंदा जवाब नहीं दे सकदा। ओ भाईया मेरे नाल लड़ पिया। ਉਹ ਵੜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਆਖਣੇ ਸ਼ੂਟਰ ਕਿਧਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ आओ। मैं शूटर आपका बाप है, मुनाफिक आदमी, तू बांदरा वांगू जंप मार के इधर उधर चला जाता है। जो कहता है भाई मैं नज़ीर की बराड़ पर भी जाना है, अमर नज़ीर भी जाना है, भाई खसमा नु ख्वाह जिदी मर्जी बराड़ पर जा, लेकिन ये शार चला के ना बन। तो ये मेरी उससे बात हुई है, क्योंकि इतना मुनाफिक आदमी यार जो सच्ची बात नहीं कर सकता। भाई चौधरी नसरुल्ला ते टवाना साहब ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਬਦਾਰ ਔਰ ਗਰਜਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਲ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਡਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਾਕ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੱਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵਡੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਂਦਰੋਂ ਨੂੰ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸकी ਤਿਆਰੀ नहीं की, ਬਾਂਦਰਾ ਜੇ ਤਿਆਰੀ नहीं की ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਲਵੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। ਵੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਮਦੀਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੇ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੌਜੂ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਗਰੁੱਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਵਾਣਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਹਬ का टवाना नु यार ये अब्दुल्ला से ये पूछो, अब्दुल्ला खातमुन ये नबी नीचे गाली लिख रहा था मुझे, ये अब्दुल्ला गाली लिख रहा था। अब्दुल्ला तूने गाली लिखी नीचे, किधर दी है? ऐसे झूठ बोल रहे हैं ये। अब्दुल्ला मैंने तो उसको भी नहीं दी, ताहिर को भी, वो ऊपर गालियां दे रहा था। ये सिद्धू साहब का टाकरा पहले हो चुका है इमरान कालू से, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे। उसने कहा था मैं सिद्धू सियालकोटी तेरी हड्डियों से जूस निकाल लूंगा। यार अब्दुल्ला मेरे सवाल का जवाब दो, खातमुन नबी ये किसने कहा था? किसने? इमरान कालू ने कहा था। इमरान कालू अब्दुल्ला से सवाल करना है, ये आलम आदमी है, वीडियो पास है हमारे का मतलब क्या है? और टवाना साहब आप भी कभी इंसाफ की बात कर लिया करें। मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद होती है, लेकिन कभी कभी आप भी डंडी मारते हैं। आप कह रहे हैं वो स्टूडेंट तो स्पेशल बुला के ना, लगा के मैच लगा के बुला के मिर्जा साहब के लिए तबरक लेता है। कब? नहीं लगाता रहा। कौन सा मैच? ये मुसलमानों के साथ, मुसलमान उसको कोई मुसलमान मिल जाए, आम कोई आलम मिल जाए तो वो सारे तबरक दे के जाते हैं उसको, सारे मिर्जा साहब को उधर बोल के जाते हैं। अब्दुल्ला मैं नहीं, वो पता है, वो तो अलग बात है यार, उसमें ये नहीं है आप। अच्छा वो अलग हो गई, यानी हर ग्रोह के पास जो उसके पसंदीदा बंदे हैं उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन है। वो अनजान आदमी के साथ। जनाब चवाना साहब, ये अब्दुल्ला साहब और शार्प शूटर साहब से विनती है थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाएं। बड़ाई साहब को मैंने बुलाया है, वो आके वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। टवाना साहब नहीं, मैं गाली केड़ी कड़ी है तार साहब, तो अनुजो तो समन गाली की बात नहीं कर रहा वो अब्दुल्ला, गाली की बात वेरी रिस्पेक्टफुली भाइयों की तरह। नहीं, इसने मुझे गाली दी है ना अभी। ओ यार मैं सॉरी कह देता हूँ, मेरे घर की तरफ नहीं आना, ठीक है? अच्छा बुरा कुछ भी है वो घर की, वो क्या इतना ही लिखा है कि जैसे तुम नमाजी परहेजगार हो ऐसे ही तुम्हारे घर वाले भी नमाजी परहेजगार होंगे। सुनो, मैं बड़ा लिहाज यार आपस में ना करो, किसी की जलाकारी ना हो। नहीं ताहिर भाई ना करो भाई, मैं भी दे लूंगा जवाब, मुझे भी जवाब देना आता है, लेकिन तुम जवाब लेने की हिम्मत नहीं रखते। अब्दुल्ला बस मसला यही है ना कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ ऐसी बात कर नहीं सकता, वरना तुम लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बंधा हुआ। मिर्जा साहब की तालीम ही नहीं है कि किसी के हाथ बंधे हुए हैं। ये लो चलो अब्दुल्ला ना कर यार। अच्छा तो ताहिर, ये क्या अफजल साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं? क्या बात? जी वो जरूरी चीज है, वो आपसे आके भी बात करेंगे 2-4 मिनट में। वो यहाँ पे आ रहे हैं, मेरी अभी कॉल पे बात हुई उनसे। भाई जब वो आएंगे तो मैं चला जाऊंगा,
यहाँ पे कोई साहब कह रहे थे कि मैं किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था, तो वो रिकॉर्डिंग चला हाँ मैं भी देख लूँ। शार्प शूटर भाई आपसे दरख्वास्त है प्लीज सिर्फ 10-15 मिनट हमें दे दो, आप फिर आ जाना, ओके ओके ठीक है? थैंक यू यार शूटर, थैंक यू हाँ यार। जज़ाकल्लाह। क्योंकि मैं ये उसमें देख चाहूंगा मेरे कुछ एमडी ताहिर, भी ये हैं तो देख मैं ये वो देख, अगर अगर अच्छे से प्यार से बात हो ना तो देख होता है ना, देख वो चला इंसान गया ना, मानता कितना आराम से चला गया, ऐसे ही है है, बंदा, आराम से जा ठीक है? सकता है। बस शर्त ये है कि प्यार से बात हो ना दोनों तरफ से यार। शमीम भाई कैसा है भैया? यार अगर किसी अल्हम्दुलिल्लाह। के पास अगर वो गाना है ना, थोड़ा सा पीछे म्यूजिक लगाओ रोमांटिक सा। तुम्हारा आए हो मेरी जी जी ये ताहिर। आवाज आ रही है? You wanna say salam to you guys. He's from Fiji. Salam karo salam. 100 people they listening. You Muslim. They all are Muslim. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, brother? Alhamdulillah, my brother. How are you? All fine, all fine, all well. Haji. इन्हें हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती अच्छा है। हिंदी भी आती है, वेरी गुड यार। हमें इंग्लिश नहीं आती मेरे भाई। हाजी हाजी हाजी। कैसा कैसा आपका आपका कैसा दिन गुजर रहा है ताहिर के साथ? बढ़िया, ये मेरा एक छोटा भाई है यार। यार जब ये भी बहुत मैं छोटा है, आता ये हूँ सबका यहाँ पर छोटा भाई बहुत है। बहुत 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 भारी से अपन खिदमत करे मेरा मुझे यार। अच्छा आपका नाम राकेश है? राकेश नहीं 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 नहीं, मेरा नाम है शमीम। Shamim, he's our Muslim brother from Fiji. ओ माशाल्लाह शमीम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। You know Fiji, टवाना साहब, Fiji का पता है आपको? हाँ फीजी आइलैंड्स बहुत मशहूर हैं यार। हाँ हाँ, हम लोग वही के। अच्छा माशाल्लाह यार, वेरी गुड यार माशाल्लाह। तो कैसा He's a ताहिर tradie, आपको टवाना साहब। He's a tradie, वो जो ये सारा हैंडीवर्क जॉब, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, एवरीथिंग सब कुछ आता है। तो ये जितने भी मेरे, he's a big boss. He look after all the properties. कुछ भी इशू होता है तो ये आके फिक्स करते हैं। ओहो शमीम भाई, फिर तो आप बहुत पैसे वाले बंदे हो गए यार। Very rich man. अभी पैसा नहीं, अभी तो काम कर रहा है। नहीं हैंड जॉब में बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है हैंड जॉब में। Yeah, just remember him in your prayers. All well यार, it was very nice talking to you शमीम भाई। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मिला, बात करा, अच्छा है, ऑल गुड। हाँ, कभी जिंदगानी रही तो मुलाकात होगा इंशाल्लाह जरूर। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाहु अकबर। यार पीछे कोई रोमांटिक सा गाना लगाओ यार प्लीज यार सरकार। तो यार आने तो दो, गाना लगाओ, आए ही नहीं फिर यार। मिनट वो आ रहे हैं, वो कुछ मतलब नहीं आएंगे फिनिश करके इस कमिंग इन 2 मिनट। और नहीं आएंगे यार, हमें पता नहीं तुम्हें। और सर किसी जानते नहीं, अफजल बड़ाई की जुबान ही काफी है। आया आया आया, वड़ाई चाहेगा, वड़ाई छा जाएगा। किसी को लिंक तो उनको शेयर नहीं किया, मैं भी आज से अफजल बड़ाई साहब की टिवाना के साथ ऐलान जंग है। आए, मैं कसम से खुले दिल से तस्लीम करता हूँ यार। टिवाना साहब, मैंने एक पोस्टर लगाना है इस दौरान, अगर आप परमिशन दे तो। ये है इस सिचुएशन के बारे में बड़ाई साहब की तरफ से ही ना, ये ले पोस्टर आप ये ले यार। अबे जो करते हो करो, कौन सी परमिशन? साला जो परमिशन लास्ट वर्ड विद टिवाना अफजल बड़ाई बकवास कर रहा है कमीने। ये क्या पोस्टर लगा? अल्लाह की कसम, ये उनके कंसेंट से लगाई। मैंने बताया तो है टिवाना साहब, आज से ऐलान जंग है। आप गाने चलाओ। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ए बहार नहीं बन के आ रहे, ये थोड़ी जिंदगी आज खिजा बन के आनगे। आज तो थोड़े पत्ते झड़ने शुरू। ओए होए होए। तो एक तो बड़ाई साहब दी आइडिया भी नहीं है, पता भी नहीं केड़ी तो आन के। अगर लास्ट वर्ड करने आए हैं ना तो मेन से आएंगे। और अगर ये है कि मकरबाजी करनी होगी तो AW से आएंगे या उमर नाम की आईडी से आएंगे। नहीं तुम्हारी शरारत में मैंने गारंटी ली है, तो प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। ओके
मेरे दिल में यूं ही रहना है। उमर वाली आईडी का तो क्रियाक्रम हो गया। अच्छा, उनके पास हैं, बहुत तो बर्बाद। नाम बदल लिया उसका तो कब से। ये एक माजिद बढ़ाए चाहे कि ये माजिद बन के हैं। यार उस दिन अब्दुल साहब के साथ पता नहीं मैंने ज्यादती की तो नहीं है, लेकिन अब्दुल साहब शायद नाराज हैं, ऊपर नहीं आते अब। अच्छा अब्दुल्ला यार, नीचे कमेंट में लिखी, ओ अब्दुल्ला तेरी सुलह हुई नहीं हुई ये बताई मुझे यार, कमेंट में बताई यार जरा। टवाना साहब अब्दुल अब्दुल्ला साहब की को आप मजादी, बुला लें, अब्दुल साहब ऊपर नहीं आते यार, नाराज हो गए हैं शायद। जब अब्दुल्ला की मजादी अब्दुल भाई खुदा ने मेरे कर बड़े ली है भाई तो यार। अब्दुल्ला की क्या जरूरत है कि वो नाफरमानी करे। क्या कह नहीं रहे नहीं हैं अब्दुल्ला यार जवाब दे, नीचे मेरा भाई बता यार, तेरी सुलह हुई नहीं हुई। मेरे दिल में यूं ही रहना है। यार ये जो जाहिर अहमद भाई हैं, ताहिर तू सुन रहा है? नहीं सुन रहा। साले पीछे चले जाते सरकार, यहाँ मैं बात किससे करूं यार। कोई फायदा नहीं है यार, सब बेवफा हैं, मतलब के यार हैं सब। देखो ना, मतलब नहीं मिल रहा तो कहते हैं सरकार में गैरत थी। साहब लाओ टवाना साहब, ये डायलॉग बड़ा अच्छा था। कौन खिजा था? के फूल आते कभी बहार नहीं, तेरे नसीब में दीवाना मलिक साहब का बनाई। डायलॉग था ना। सरकार ये जरा नीचे डायलॉग पढ़ो, क्या जबरदस्त डायलॉग लिखा है यार। नहीं है बिल्कुल टवाना साहब। अच्छा ये सरकार इस बंदे के कमेंट पढ़ने वाले होते हैं, बड़ा मजे के कमेंट करता है ये, बड़ा जालिम है। यकीन, ये इसका नाम पहले कुछ और था, मैंने इसके कमेंट्स को प्रायोरिटाइज भी किया हुआ है, हालांकि कभी माइक पे नहीं आया, लेकिन जो जिस आदमी का आईक्यू लेवल अच्छा हो ना उसको प्रेज करना चाहिए। ये वही तो नहीं अली वाला यार? ये वो है, इससे पहले इसका दूसरा था, उस दिन ना इसका कुछ नाम मैं भूल। बताओ जी आप अली हो? इसका कुछ और था जिसके नाम अली के नाम का आईडी थी। हाँ ये जालिम तो इसने बाद में किया, पहले नाम कुछ और था इसका। ये बड़े अच्छे कमेंट करता है ये। आप कभी कभार ये खिलाफ भी करेगा आपके, लेकिन वो मजा आता है सुन पढ़ के ना, हंसी भी जाती है। जी हाँ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात लगी है मुझे कि अनकरीब टिवाना साहब आप में भी गैरत हुआ करती थी, ये बातें सुनने को मिलेगी। नासिर भाई आप पे अटैक करी जा रहा है सरकार। पर नासिर साहब नहीं कर रहे थे यार, वो इनसे पहले मलिक साहब बैठे थे, वो करके अच्छा सॉरी यार, इन सब की आवाजें भी मुझे एक जैसी लगती है। नासिर साहब तो जट जमींदार आदमी हैं, इनकी आवाज़ में खड़कार ही ऐसी है, इनका सलाम आता है फिर इनकी जो गुफ्तगू होती है। लेकिन यार अब्दुल साहब नाराज हो गए टवाना साहब, लगता है अफजल बड़ाई साहब अब्दुल साहब एक बात मैं आपको बोलूं सरकार, हाँ अब्दुल साहब किसी से भी नाराज हो सकते, मुझसे नाराज नहीं हो सकते। नहीं है, मुझे लगता है अफजल साहब के साथ साथ हमने अब्दुल साहब को भी खो दिया। ना 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 ना, अफजल साहब नहीं नाराज होते, अब्दुल साहब सॉरी। तो बुला के दिखाओ फिर आते हैं, तो अगर आज आ गए तो आपकी बात मान लूंगा मैं, लेकिन अगर आज ना बेटा पता चल गया था उस दिन आप जो है ना इनको तंग कर रहे थे, मुझे सारा पता है सरकार साहब। और नहीं यार मैं तंग नहीं कर रहा था, असल में इन्होंने तंग आ गया हमें करना शुरू कर दिया। दो बातें पहले बंदे कर रहे थे, इन्होंने आके एक नई कहानी शुरू कर दी। तंग तो इन्होंने किया कि मैं तो खैर उनको रोक रहा था कि आप सही बात करें। अबे चेक कर ले, ये अफजल साहब अतीक के नाम से तो नहीं घूम रहे आजकल? हेलो अतीक भाई, अफजल साहब का कोई पता नहीं चलता। हाँ किसी भी नाम से आ सकते हैं वो सब अब्दुल्ला कहता नहीं, अनुषे के नाम से भी आते हैं। अच्छा मैं घर में मैं घर में घुस गया हूँ यार। आदि नासिर साहब कोई तुसी सुना दो गपशप, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੜੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਆਲਮ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਮ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ।
ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ, ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਲਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। अच्छा टिवाना साहब बड़ाई साहब ने वो एक छोटी सी डिमांड रखी है, वो आपसे थर्ड प्लेटफॉर्म पे बात करना चाह रही हैं और पब्लिकली। तो वो एक उन्होंने और नाम दिया था जिस पे मैंने ना कर दी, तो देन उन्होंने कहा कि अगर तायर जो है वो ब्रॉड लगा ले तो मैं उधर आके मैं टिवाने से 1 by 1 आज बात करना चाह रहा हूँ। लगा ले यार, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है तार साहब। मैं कौन सा यार मोहब्बत वाले, मैंने कौन सी बहसबाजी है, शर्तें शराइत रखनी है अफजल साहब के आगे ढेर। ਵੇਖੋ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। यार बस मैं आप लोगों से एक सवाल ये करता हूँ कि वो जितनी भी टीम है पीछे, जितना भी है सब कुछ, वो मुझसे दुश्मनी या मैं उनको बुरा लगता हूँ, पता है किस लिए? आप लोगों की वजह से ना, कि मैं आप लोगों के लिए एक स्टैंड है। अब आप लोग मेरा कितना साथ देते हो इंशाल्लाह ये मैं आगे देखूंगा। वही हम तो टवाना साहब साथ देंगे आपका, आप हमारे खिलाफ भी होंगे, जितना चर आपने हमारा साथ दिया हम देंगे जरूर। मैंने तो साबित किया, इंशाल्लाह आप लोगों का भी देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। नासिर साहब अकेले, टिवाना साहब नासिर साहब अकेले आपके साथ खड़े होंगे। हाँ देख लेना, बाकी लोग जो है ना वो आपको छोड़ के भागेंगे, वो कहेंगे टिवाना जो है ना ये बिक गया है, टिवाना सरकारी हो गया है, टिवाना मुनाफिक हो गया है। सरकार साहब एक मेरा नाम भी लिख दो टिवाना साहब के नाम। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਵਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। सरकार साहब की करना है? लव यू। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਜ ਮਸਤ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਕੰਜਵੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਜੂਦ ਨੇ। उस्ताद जी मैं तो कोई सुलह शुलह नहीं करनी, मैं कल्ला भी हाँ तो मैं जो है ना मेरी टंगा च बड़ा पार है। हाय ठीक, तो मैं कल्ला भी खड़ा हाँ तो खड़ा रहेगा। उन तुसा लोग जो है वो नाल होंदे हो नहीं होंदे, तुसा दा इम्तिहान स्टार्ट है। या तो अगे वो अपने आप नू बदलणगे या लड़ाई गंभीर होएगी। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ। सारे भाई जो जिधर जाता है जाए। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਟਵਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। चलो चलने आ गल करने आ उत्थे, मैं फिर मैं ढा रहा चलना, फिर उत्थे जो है गल करने आ। किधर ये ना हो कि दुश्मन ये ना कहे कि टिवाने ने आने च देर ला दी। ठीक हो गया बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज।